operations are processed in parallel. Mr. Dhaneshwar Kumar is a highly accomplished full-stack developer known for his exceptional problem-solving skills, complemented by a robust educational foundation. He earned his BTech degree in computer science and engineering from Magad University, Bihar, and further advanced his expertise by obtaining an MTech honors degree from Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Presently, Mr. Kumar serves as a senior assistant professor in computer science at ABES Engineering College, Ghaziabad, where he imparts his extensive knowledge to his aspiring engineers. His dedication to excellence in the field is underscored by several prestigious awards, including the Infosys Gold Faculty Partner, Automation Anywhere Developer, and IBM Big Data and Cloud Computing Trainer certifications. In addition to his teaching endeavors, Mr. Dhaneshwar Kumar excels in competitive programming on renowned online platforms such as LeetCode, HackerRank, CodeChef, Top Coders, and Coding Ninjas. His remarkable achievements include holding a gold badge and an impressive 6-star rating in problem solving. His expertise extends beyond academia as he is a sought after corporate trainer in cutting edge technologies, having contributed significantly to organizations like Samsung Display and Robotics Trade. So, welcome, sir. We are ready to receive your knowledge. So, over to you, sir. Okay, thank you, ma'am. So, such a nice introduction. Okay, let me share the screen. I think I'm audible. So, can anyone confirm? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and the screen is also visible. Sir, right now it is not visible. Okay, Now so it I'm is just visible. shared. Now, Okay, now it is visible. so if we talk about the beat manipulations, so it is very basics codings. Okay, so that we have that we study into the first year of क्लासेस बट उस समय हम लोग उतने ध्यान से उसको नहीं देखते क्योंकि इन दैट केस हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे कि हमारे ऑपरेटर्स क्या हैं ओके सो मैं सिंपल वही से स्टार्ट करने वाला हूँ लाइक बिट मैनिपुलेशंस बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टूड अबाउट द व्हाट इज बिट ओके सो बिट लेवल पे काम करने के लिए हमें देखना पड़ेगा और उसके लिए अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो मेन जो वर्किंग एरिया है दैट इज ओनली द बिट ओके सो इन बिट वी विल यूज द हम लोग बिट से स्टार्ट करेंगे ओके सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बिट मैनिपुलेशंस लेकिन बिट से भी पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ द वेरिएबल्स विल बी स्टोर्ड और हाउ द नंबर्स विल बी स्टोर्ड into the system so to get into the depth okay so अगर हम bitwise की बात करें so we have bitwise operator okay like हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं एंड होता है बिटवाइज एंड होता है बिटवाइज और होता है बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर होता है बिटवाइज और ऑपरेटर होता है ना लेकिन हाउ दे वर्क्स तो अगर हम बिट की बात कर रहे हैं दैट मींस कि इफ वी ट्रीट एनी नंबर लाइक 10 ओके सो अगर ये एक डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहा है सो व्हेनेवर वी इनपुट दैट नंबर ओके व्हेन वी इनपुट दैट नंबर इनटू सिस्टम सो दैट विल बी टेकन इनटू द बाइनरी ओके सो कंप्यूटर में अगर हम देखें तो वो हमारा स्टोर होगा 1010 ओके बिकॉज 10 की बाइनरी हमारी ये होती है लेकिन वापस जब हम उसको प्रिंट करते हैं ओके सो आप व्हेन वी विल प्रिंट दैट देन वो हमें फिर से 10 के फॉर्म में प्रिंट करता है बट अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें कंप्यूटर में कैसे वो स्टोर होगा सो इट डेफिनेटली विल बी स्टोर्ड ऑलवेज इनटू द बिट्स ओके तो अगर हम इस हिसाब से बिट वाइज में देखें या बिट के थ्रू कैलकुलेशंस देखें तो हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो इससे सॉल्व होते हैं ठीक है जिसको आज हम लोग देखेंगे है ना लेकिन
उसके पहले हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स है वो स्टोर्ड कैसे होते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमारा सिस्टम 16 बिट्स पे भी काम करता है ना, 8 बिट पे भी काम करता है, 32 पे काम करता है, और मान के चलो कि 64 बिट पे काम करता है। ठीक है, तो इतने सारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस है, और अगर हम हर कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो हमारे पास स्टोर कैसे होगा डेटा, है ना। सो दैट इज द बिग टास्क। देन वी विल लर्न हाउ कि डेटा अगर स्टोर हो रहा है, जैसे हम लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं ना कि इंटीजर दैट विल टेक 32 बिट, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट। और अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं तो ये 32,768 ही क्यों होता है, ठीक है, 32,767 तक ही क्यों होता है, ये माइनस से प्लस तक। So we will also get into details। इतना ही नहीं कि हम इसीलिए सिर्फ इंटीजर की, अगर हमारे पास किसी भी नंबर का बिट पता हो कि कितने नंबर ऑफ बिट्स वो मेमोरी में स्टोर करेगा, देन वी कैन फाइंड आउट द रेंज ऑफ दैट नंबर, कि वो जो वेरिएबल्स है या वो जो डेटा है वो कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो हमारे पास बेसिक डेटा टाइप की अगर मैं बात करूं, मतलब बिल्कुल बेसिक से बेसिक अगर मैं डेटा टाइप की बात करूं, तो हमारे पास है शॉर्ट है। ओके, सबसे जो हम लोग यूज कर सकते हैं, और इससे भी अगर हम देखें छोटा तो बाइट है। ओके, सो बाइट, शॉर्ट, इंट, और मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर करस्पॉन्डिंग हम देखें नंबर ऑफ बिट्स, तो बाइट हमारा 8 बिट यूज करेगा, ओके, शॉर्ट 16 यूज करेगा, इंट 32 यूज करेगा, और लॉन्ग मान के चलो 64 बिट्स पे ये काम करता है। ओके, तो अब अगर मैं ये देखूं कि 8 बिट अगर हमारे पास है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई 8 स्पेस है जिसमें हम कोई बिट स्टोर कर सकते हैं, ओके, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, अगर हम बाइनरी की बात करें, ठीक है, तो बाइनरी की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 0, 0, 0 सभी में रखेंगे, लाइक 8 0 रखेंगे, है ना। सबसे पहला तो यही होगा मिनिमम नंबर। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 होगा। फिर उसके बाद हम देखें तो हमारे पास 2 होगा। फिर उसके बाद 3 होगा। इसी के हिसाब से हमारे पास फिर 4 होगा, है ना। तो ऐसे करते करते हमारे पास जो सबसे लास्ट नंबर होगा वो होगा ये 8 1। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास टोटल 8 बिट दिया हुआ हो, है ना, अगर टोटल हमारे पास 8 बिट दिया हुआ हो, तो उस 8 बिट के टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे वो हम इससे निकाल सकते हैं। तो कितने हुए, तो हम यहाँ पे अगर काउंटिंग के मैं बात करूं तो कितना हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास 8 बिट है तो टोटल नंबर ऑफ कलेक्शंस हमारे पास इतने होंगे। दैट मीन्स कि हम निकाल सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं, चूंकि ये काफी बड़ा हो जाएगा, है ना, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और थोड़ा सा छोटा करके, एक सेकंड, इसको भी हटाता हूँ सिर्फ। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देन वापस हम इस पे आएंगे, जो जो ये 8 बिट है ना उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक ऐसा डेटा टाइप है जो 4 बिट यूज कर रहा है। ठीक है, जनरली ऐसा कोई डेटा टाइप होता नहीं है, बट फिर भी हम इसको समझने के लिए कि हाउ द नंबर विल बी स्टोर्ड इनटू द सिस्टम, हम लोग ये ज्यूम कर लेते हैं कि जो नंबर है वो कोई भी एक डेटा टाइप है, कस्टम डेटा टाइप मान लेते हैं, तो वो 4 बिट स्टोर करता है। ठीक है, तो अगर 4 बिट स्टोर करेगा कोई भी डेटा टाइप, दैट मीन्स कि हमारे पास टोटल 4 स्पेस होंगे, इस तरह से। तो अगर हम वैसे दिखाएं तो हमारे पास टोटल कितने कलेक्शंस हो जाएंगे, तो 2:4, है ना, इतने कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे भी 0 या 1, यहाँ पे भी 0 या 1 हो सकता है ना, यहाँ पे भी 0 और 1, यहाँ पे भी 0 और 1। दैट मीन्स कि हर वैल्यू पे 2 वैल्यू जा सकती है, हर प्लेस वैल्यू पे 2 वैल्यू जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि 2:4, दैट मीन्स कि टोटल 16 नंबर्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करें तो क्या ऐसा होता है, मतलब अगर हमने निबल लिया, निबल लिया मतलब जिसको 4 बिट जो स्टोर करता है ना, दैट इज कॉल्ड निबल। निबल का मतलब ये होता है 4 बिट। ओके, तो अगर हमने निबल यूज किया है तो क्या जरूरी है कि उसमें सिर्फ
0 से लेके 15 तक ही स्टोर होगा, अगर हम 16 की बात कर रहे हैं तो, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। हमारे पास तो निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो अगर 4 बिट में मेरे को कोई निगेटिव नंबर अगर स्टोर करना हो तो कैसे स्टोर होगा, और उसका फिर रेंज कितना होगा। ओके, तो इन इसी चीज को हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे कि हाउ रिप्रेजेंट दिस नंबर सो दैट वी कैन फाइंड द रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। और जिसमें मैंने एग्जांपल के लिए 4 बिट लिया है, अगर हम 4 बिट के लिए निकालेंगे तो द सेम विल वर्क ऑन फॉर द 8 बिट आल्सो, 16, 32 एंड सो ऑन 64 बिट आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं अब थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ कि हम 4 बिट को ही लेके अभी कंटिन्यू करेंगे, और हम ये सारे नंबर्स को फाइंड आउट करके देखते हैं कि वो कौन कौन से नंबर है जो स्टोर्ड होंगे। जहां तक हमारे पास सिर्फ 4 बिट ही अगर हमारे पास होंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या स्टोर होगा और सबसे छोटा नंबर क्या स्टोर होगा। ठीक है, तो हमारा लॉजिक ये कहता है कि अगर आपके पास 4 बिट है तो आपके टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे समथिंग इस लाइक। मैं इसको बना देता हूँ पहले। 2 3 4 5 6 7 और फिर यहाँ पे हो जाएंगे 4 0 4 1 4 0 4, उसके 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे जाते जाते लास्ट में ये आपके पास 15 आएगी। ठीक, तो अब रही बात अगर 4 डिजिट की, तो 4 डिजिट में हम ये मान के चलते हैं कि एक बिट जो होता है वो हमारा साइन बिट कहलाता है ना। तो अगर सपोज करो ये हमारा है साइन बिट, ओके, तो हमें स्टोर क्या करना होगा, हमें सिर्फ इन 3 में ही स्टोर करना होगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें ये पता करना है कि 4 बिट में एक बिट तो रिजर्व कर दिया साइन बिट के लिए, तो 3 बिट में मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर की अगर मैं बात करूं और ये हमारे पास अगर 0 है तो कोऑर्डिनेट्स मैंने यूज किया है, इस तरफ निगेटिव वैल्यू जाएंगी, इस तरफ हमारी पॉजिटिव वैल्यू जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे ये पता करूं कि अगर मेरे को सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर निकालना है, ठीक है, तो साइन बिट की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए क्योंकि 0 का मतलब होगा पॉजिटिव। और सबसे बड़ा नंबर है यानी कि 0 और 1 में बड़ा नंबर पुट करो, तो बड़ा नंबर अगर आप पुट करोगे तो ये क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अगर ये 3 1 हुआ है दैट मीन्स कि ये कितने के इक्विवेलेंट हो गया, 7, है ना। तो मतलब सबसे बड़ा नंबर जो है वो कितना स्टोर हुआ है इसमें, 7। ठीक है, अगर मैं सबसे छोटा नंबर की बात करूं जिसमें साइन बिट 0 ही हो तो क्या हो जाएगा, मैं इसको 0 रखूंगा और इन सभी को 0 कर दूंगा, तो कितना होगा 0। मतलब सबसे छोटा नंबर हमारा इस केस में अगर मैं रेंज की बात देखूं तो यहाँ पे 0 है। सेम उसी तरह से अगर मैं निगेटिव की बात कर रहा हूँ, निगेटिव नंबर की बात कर रहा हूँ, तो निगेटिव नंबर में अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है, और बाकी जगह मैं 0 रख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ना कि निगेटिव साइन में सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो ये कितने के इक्विवेलेंट होगा आप खुद बताइए कि अगर ये 2s कॉम्प्लीमेंट्स बता रहा है नेगेटिव नंबर के लिए, क्योंकि सिस्टम क्या यूज करता है, 2s कॉम्प्लीमेंट यूज करता है। तो अगर 2s कॉम्प्लीमेंट हम लोग यूज करेंगे तो अगर यहाँ पे 1 है तो ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 2s कॉम्प्लीमेंट्स का क्या फंडा होता है कि आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, सॉरी राइट टू लेफ्ट जाना है, और जब तक 1 नहीं मिले तब तक सेम लिखना है, और जैसे ही 1 मिल जाए उसके बाद सारे नंबर्स को उल्टा कर देना, तो पता चलेगा कि ये कितने का इक्विवेलेंट नंबर है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या रहेगा, ये 0 ही रह जाएगा, ये 0 ही रह जाएगा, ये 0 ही रह जाएगा, और ये 1 मिला, तो ये कितने का इक्विवेलेंट हो गया, तो ये हो गया 8 के इक्विवेलेंट। ठीक है, और उसमें साइन क्या था, माइनस, तो ये कितना हो गया, -8। दैट मीन्स कि ये नंबर हमारा -8 होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आया सबसे छोटा नंबर है। और अगर मैं निगेटिव में सबसे बड़ा नंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 1 लिखोगे और बाकी में आप लिख दोगे 0।
इसी तरह से लिखोगे, सॉरी उल्टा लिखोगे, इसको कर देंगे 1 1 1। तो ये कितने के इक्विवेलेंट होगा? तो आप देखो ये 1 है, यहाँ पे सारे हो जाएंगे 0 0 0 0 और ये 1। तो कितने के इक्विवेलेंट हो गया? -1। दैट मीन्स कि यहाँ पे आ गया 20। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 बिट का नंबर है तो हम स्टोर कर सकते हैं कितना? -8 से लेके 7 तक। ठीक है, जिसमें से क्या हो जाएगा? ये अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जितने भी 1 वाले हैं ये सारे निगेटिव वाले आएंगे, जिसमें से आपका माइनस से स्टार्ट होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ से देखना शुरू करूं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सारे कितने से माइनस होंगे। दैट मीन्स कि अगर किसी भी नंबर के या किसी भी डेटा टाइप का अगर आपको रेंज पता करना है तो आपको इसी हिसाब से जाना है। जैसे कैसे जाना होगा? तो अगर हमारे पास मान लो नंबर ऑफ बिट्स जो है वो n है, n बिट का कोई नंबर है, ठीक है, तो क्या हम करेंगे? मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2n-1 निगेटिव में 2 2n-1 माइनस। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू हमारी 4 है तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा? 2 2 से 2 3 -1। ओके, दैट मीन्स कि कितना हो गया? ये -8 से 7, ये हमारा रेंज है। तो उसी तरह से अगर हम शॉर्ट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 2 50। या अगर हम बाइट की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 7 से 2 7 -1। ठीक है, मतलब -256 से लेके 255, ये आपका रेंज बनेगा। सो इसी तरह से हमारे जितने भी डेटा टाइप है, हमारे जो भी डेटा टाइप है, उन सभी डेटा टाइप का हम लोग रेंज इस हिसाब से निकालते हैं। अब इस वाले में कभी कभी गड़बड़ क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है कि सपोज करो कि हमारे पास हमने जो कस्टम डेटा टाइप बनाया था ना उसमें कुछ स्टोर करता है। जैसे सपोज करो हमने निबल ले लिया, ठीक है, निबल ए, और ए में स्टोर कर दिया 10। ठीक है, तो हमें पता है कि भैया जो निबल है वो 4 बिट लेता है। ठीक है, और अगर 4 बिट लेता है तो 10 तो उसमें स्टोर ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका रेंज जो है, निबल का रेंज क्या है? -8 से 7 तक, और हम स्टोर करना चाह रहे हैं 10। ठीक है, तो अब ये कैसे स्टोर होगा, कैसे वर्क करेगा? तो आप यहाँ पे सिंपल देखिए कि पहले आप 10 का ना निकाल लो आप इसका बाइनरी। ठीक है, तो 10 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 1010, ये कहलाएगा। ठीक है, अब ये 10 का बाइनरी है, हमें सिर्फ 4 बिट से काम करना है। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि ये क्या है? ये तो एक निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? मतलब 10 में तो ये स्टोर हो रहा है, लेकिन ये निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 4 है। तो अब ये कितने को स्टोर कर रहा है? तो आप इसका निकालो फिर से, सेम वही लॉजिक, 2's कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू। ये 2's कॉम्प्लीमेंट्स पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से चेक करना शुरू करेंगे। 0 1 1 मिल गया, उसके बाद सबको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 1 1 0। ये कितने के इक्विवेलेंट है? तो ये 1 2 4, 4 और 2 6, जिसके ऊपर 1 है उसी को काउंट करेंगे। 4 और 2 6। दैट मीन्स कि अगर आप 10 स्टोर करोगे निबल में तो कंप्यूटर में वो कितना स्टोर हो जाएगा? -6। ठीक है, उसी तरह से अगर आपने 12 दिया, आपने 12 कहा कि नहीं हमें तो 12 स्टोर करना है, करते हो ना कि सपोज करो कि इंटीजर में रेंज है उसका 32,000। ठीक है, 32,768 मान लो उसका रेंज है, 67 रेंज है पॉजिटिव की अगर बात करें तो। और इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी कितनी? मैंने वैल्यू पुट कर दी 40,000। तो ये कैसे करेगा? तो वो इसी हिसाब से निकालता है, इसी हिसाब से उसको राउंड करके बताता है। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि राउंडिंग जो होगी वो किस हिसाब से राउंडिंग होती है। ओके, तो ये राउंडिंग के बेसिस पे हमें काम करना है।
अब अगर मैंने 12 दिया तो आप 12 का सीधा बाइनरी निकालो, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसकी बाइनरी निकालेंगे। बाइनरी निकालना भी आसान है, आप लिख लो 1 2 4 और 8। अब किसको जोड़ के 12 आएगा, तो 8 और 4 को, तो यहाँ पे लिख दिया 1 1 0, ये हो गया हमारा 12, 12 की बाइनरी होगी। ठीक। और इस वाले को अगर मेरे को पता करना है कि भैया ये स्टोर कितना होगा एग्जैक्ट में, तो इस साइन बिट से तो हमें पता चल गया ना कि ये हमारा निगेटिव नंबर है। तो कितने का निगेटिव नंबर है, तो सेम वही लॉजिक की इधर से चलो, जैसे ही 1 मिले उसके आगे सारे नंबर्स को उल्टा करो, तो 0 0 1 और ये हो गया 0। अब ये कितने के इक्विवेलेंट है, तो 1 2 4, दैट मींस कि कितना हो गया माइनस। तो अगर आप 12 दोगे तो उसमें स्टोर कितना होगा। ओके। तो इस हिसाब से हमें काम करना होता है जब हमारे पास अवेलेबल डेटा हो। ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि हम उसको फिक्स बिट कहते हैं। लाइक फिक्स बिट का एग्जांपल क्या होगा कि जैसे सपोज करो बहुत बड़ा डेटा देंगे, सपोज करो हमने दे दिया हमने दे दिया 9, हमने दे दिया मान लो 20, या एक बिट बड़ा कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे मान के चलो 20 का अगर मैं देखूं तो 20 का बाइनरी कितना हो जाएगा, 1 2 4 8 16, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 0, ये हो जाएगा। ठीक है। और इसको मैं चाह रहा हूँ निबल में स्टोर करना, तो देखो ये कंप्यूटर में तो ये ऐसे स्टोर होगा, मान लो ये 8 बिट में है तो 3 2 5, यहाँ पे 3 जीरो लग जाएंगे इस हिसाब से। और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कास्ट होके चला जाए निबल में, तो क्या करता है वो फिक्स बिट देखता है बस, और कुछ नहीं करता। वो क्या देखेगा, वो लास्ट के 4 बिट उठाएगा और बताएगा भाई हम तो यही स्टोर कर सकते हैं, इन सभी को वो काट देगा। ठीक है। तो इस केस में अगर आप 20 दे रहे हो निबल में, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, तो वो क्या कर देगा, वो सिंपल इसको 1 2 4 4 स्टोर कर। ओके। तो इसी हिसाब से हमारा राउंडिंग काम करता है, मतलब जब ओवरफ्लो हो जाता है ना, जब ओवरफ्लो होता है तो वो इसी हिसाब से काम करता है। इसको हम लोग कहते हैं फिक्स बिट मैनिपुलेशन, कि जितने बिट का आपका वर्क है उतने बिट को ही वो स्टोर करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। तो जो बिट बचा हुआ है उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू होगी, उसी पे आपका ये काम करेगा। ठीक है। सो बिट वाइज में मतलब बिट में हमने देखा कि हाउ द नंबर्स स्टोर्ड, और हमारे को ये भी पता चला कि जब इंटीजर है 32 बिट स्टोर करता है तो वो कितना रेंज लेगा। हमने ये फाइनल कर लिया, ये प्रूफ कर लिया कि किस हिसाब से ये होगा ना। अब हमारे पास आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। तो मैं थोड़ा सा जावा को लेके चलूंगा यहाँ पे, क्योंकि जावा में बिट वाइज ऑपरेटर एक दो एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस हमें स्निपेट्स में वो भी देखते हैं, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो अगर मैं बिटवाइज ऑपरेटर की बात करूं तो बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास आते हैं एंड, फिर और, फिर उसके बाद जोर, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और ट्रिपल राइट। इनका मतलब क्या है। ठीक है। तो एंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास एम्परसेंट है, और की बात करें तो ये है, जोर की बात करें तो ये है, tilde है, वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हमारे पास ये है। ठीक है। फिर और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के लिए हम लोग यही यूज करते हैं। सो दिस वन इज कॉल्ड राइट शिफ्ट, दिस वन इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट, और दिस वन इज कॉल्ड ट्रिपल शिफ्ट। ट्रिपल शिफ्ट। ठीक है। एक और ऑपरेटर इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं जब हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टूस कॉम्प्लीमेंट। ओके। तो टूस कॉम्प्लीमेंट का कोई वैसे सिंबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी नंबर है, अगर आपने उसमें माइनस साइन लगा दिया ना, तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो ऑप्शन है कि आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर उसमें वन ऐड करो। दूसरा ऑप्शन है कि जो भी नंबर है उसके आगे में माइनस लगा दो, तो वो डायरेक्ट टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं इसमें, जिसके हिसाब से हम काम करते हैं। इसमें आप लोगों को क्या कोई है। प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कुछ ऐसे जिनका किसी की माइक अपने आप अनम्यूट हो जा रही है।
सर मैंने म्यूट कर दिया है जिसका था। ओके, तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिन ऑपरेटर्स पे हम लोग काम करते हैं बीट वाइज में, और इस वाले में सबका अपना अलग अलग काम है। ठीक है, तो अगर हमें ये देखना हो कि एंड का कब यूज करना है, और का यूज कब होगा, जोर, वंस कॉम्प्लीमेंट, इन सब का क्या क्या काम है, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल देखूं तो एंड और में आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम टाइम सेव करने के लिए ये दो ऑपरेटर को छोड़ भी सकते हैं, मैं जोर से कराता हूँ। किसी को कोई अगर कंफ्यूजन होगी एंड और में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या जस्ट पुट अप योर हैंड कि मेरे को पता चल जाए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जोर का बेसिक फंडा यही था कि जब दोनों डी सिमिलर हो तभी हम उसको ट्रू मानेंगे, अदरवाइज हम उसको फॉल्स मानेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और, ठीक, तो इसको अगर हम देखें तो क्या आएगा, और अगर ए और जीरो, क्योंकि जनरली देखा जाए इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको ऐसे मैं करता हूँ कि यहाँ पे 1 है, ओके, जोर 1 है तो 0 होगा, 0 जोर 0 है तो 0 होगा, 1 जोर 0 है तो 1 होगा, और 0 जोर 1 है तो 1 होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो इस वाले में। ओके, सो दैट मीन्स कि जब दोनों डिसिमिलर होंगे तभी हमारा वैल्यू ट्रू होगा, अदरवाइज हर किसी के लिए वैल्यू हमारा फॉल्स। वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंपल फंडा है कि आप इसको एक वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हो, लाइक ये यूनरी ऑपरेटर के जैसा काम करता है, और जो भी उसकी वैल्यू है ये उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में बदल देगा। अब यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ये नहीं समझेंगे कि वो निगेटिव में बदल देगा, ओके, बिकॉज आवर सिस्टम इज नॉट वर्क ऑन वंस कॉम्प्लीमेंट टू फॉर द निगेटिव नंबर्स। ठीक है, अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट्स की बात करेंगे तभी हम लोग निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा सिस्टम टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करता है, वंस कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं करता। ठीक है, तो जो भी नंबर है, जैसे 5 है, ए में मैंने 5 स्टोर किया है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 101। ठीक है, 124, और इसको अगर मैं 8 बिट में लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको अगर मैं 8 बिट में लिख दूं, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जब मैं लिखूंगा लाइक बी इक्वल्स टू, तो बी में क्या स्टोर होगा, तो बी में स्टोर हो जाएगा आपका 1 1 1 1 1 0 1 0। ठीक है, ये कंप्लीट इसको उल्टा करके स्टोर कर देगा। अब ये आपको पता करना है कि ये कितने को रिप्रेजेंट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक ये निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन निगेटिव नंबर में कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट का फंडा ये नहीं होगा कि जो आपका 5 है वही आपके निगेटिव में -5 आएगा, इट्स नॉट नेसेसरी। ये सिर्फ और सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट में निकालेगा। दैट मीन्स कि जब भी आपको बिट फ्लिप करना हो या बिट टॉगल करना हो, सारे बिट्स टॉगल करने हो, तो आप यूज कर सकते हो वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ सेकंड अगर हम देखें तो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट में क्या है उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और समटाइम्स हम जब मास्किंग करते हैं ना, तो मास्किंग वाले में हमें शिफ्ट की जरूरत पड़ती है। तो अब जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई नंबर है, और मान के चलिए कि नंबर हमारे पास है 5। ठीक है, या कोई वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल में कर दिया 5, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए इज, पहले लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं, ए को हमने शिफ्ट किया 3 बिट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, और मान लो यहाँ पे एक्स है, ओके, मैंने एक्स में स्टोर कर लिया, अगर चाहे तो हम ए में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये किस हिसाब से काम करता है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि हम बिट वाइज यूज कर रहे हैं, है ना, तो बिट वाइज ऑपरेटर पे ही ये काम करेगा, बिट मैनिपुलेशन। तो 5 की बाइनरी लिख लेंगे, 5 की बाइनरी अगर मैं 8 बिट में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 101, फिर उसके बाद 50, 1 2 3 4 5 6 3 3 6 2, ये है हमारा ए। ठीक है, अब इसने कहा है कि इसको 3 बिट राइट शिफ्ट करो, तो राइट शिफ्ट करने का मतलब है
कि पीछे में ना 3 जीरो ऐड हो जाएंगे, तो अगर पीछे में 3 जीरो ऐड हो जाएंगे तो आगे से ये हट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा डेटा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 0 1 0 1 और लास्ट में 3 0। क्यों, क्योंकि हमने 3 बिट्स है। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड आवर राइट शिफ्ट। ठीक है, अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, इसको मतलब एक बिट जब वो शिफ्ट होता है ना तो 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैं 5 को 1 बिट शिफ्ट करूंगा, 5 को 1 बिट शिफ्ट करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 को 1 बिट शिफ्ट करूंगा तो 20 हो जाएगा, 20 को 1 बिट शिफ्ट करूंगा तो 30 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये वाला जो नंबर है ये 30 के इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स कि x की वैल्यू यहाँ पे 30 है। ओके, तो इस हिसाब से हमें इस पे काम कर सकते हैं। तो जब भी हमें शिफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम शिफ्टिंग में सेम यही पे काम करते हैं, इसी हिसाब से हम काम करते हैं। ओके, नाउ अब अगर हम यहाँ पे राइट शिफ्ट की बात करें तो राइट शिफ्ट वाले में ध्यान क्या रखना है वो देखिए। राइट शिफ्ट में जनरली थोड़ा सा चेंजेस होता है, थोड़ा सा चेंजेस क्या होता है कि इसमें साइन बिट भी तो होगा, तो अगर हम शिफ्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पर से इसको हटा दूं और a की वैल्यू मैं बिट वाइज ले लेता हूँ। ठीक है, बिट में कोई ले लेता हूँ नंबर, जनरली मैं दोनों बिट लूंगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए, फिर देखते हैं कि दोनों में क्या होगा। तो सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है जो कि स्टोर्ड है समथिंग इस तरह से 1 0 0 0 1 0 1 0 3 3 6 9 हो गया, इसको हटा देंगे लास्ट वाले में। हम 8 बिट लेके चले। ठीक है, और ये जो बाइनरी है ये मान के चलिए कि किसी नंबर में स्टोर्ड है, लाइक एक्स में स्टोर्ड है। अब अगर मैंने कहा कि एक्स को शिफ्ट करो, ठीक है, एक्स को शिफ्ट करो 2 बिट, तो अब इसमें आपको क्या देखना है कि जैसे इस वाले में ना साइन बिट की वैल्यू क्या है, लास्ट बिट जो है दैट इज और साइन बिट, तो जो साइन बिट होगा ना वही वैल्यू इसमें अपेंड होगा, ये आपको ध्यान में रखना। जैसे अगर मान लो यहाँ पे कुछ जीरो वाला वैल्यू होता, क्या होता 1 0 1 0 इस तरह से होता, तो यहाँ पे क्या है जीरो है, तो इस वाले में अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो इसमें जीरो अपेंड होगा, मतलब सारे आगे जाएंगे, दैट मीन्स कि आगे से 2 हट जाएंगे, तो पीछे में क्या ऐड होगा, है ना। तो अगर इस वाले में मैं बात करूं तो ये 2 बिट हमारा सब आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के क्या ऐड होगा 1, तो 1 1 फिर उसके बाद ये 1 0 0 0 1 0। दिस इज कॉल्ड आवर राइट शिफ्ट। और इस वाले की बात करूं तो साइड बिट हमारा क्या है, 0 है, तो इसमें 0 ऐड होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से हट जाएंगे ये कितने आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 फिर उसके बाद 0 0 0 0 1 0। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन बिट वाले में जब राइट शिफ्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सेम उसी तरह से इसी एक्सेप्शनल्स के लिए हमारे पास राइट शिफ्ट बनाएंगे, और इस वाले में मान के चलिए कि ऑलवेज जो अपेंड होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, सिर्फ हमेशा 0 ही अपेंड होगा इस वाले में, इसी के लिए इसको। ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मल इंट्रोडक्शन। अगर हम देखें तो हमारे बीट वाइज ऑपरेटर्स के सारे इंट्रोडक्शंस हो गए। ठीक है, अब हम कुछ ऑपरेशंस की बात करते हैं कि हमें कब कौन सा ऑपरेशन यूज करना होगा या कब कब हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे, है ना। तो अगर हम बीट वाइज में देखें तो बीट वाइज में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी, तो हमारे पास एक होता है कि चेक करना कि पर्टिकुलर बीट ऑन है या ऑफ है। ठीक है, मतलब कोई एक नंबर दिया हुआ है या कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें आपको पता करना है कि भाई nth नंबर ऑफ बीट जो है वो ऑन है या ऑफ है, तो क्या करेंगे। ठीक है, सेकंड वर्क होता है हमारे कि हमें चेक करना है कि ऑफ है या नहीं। यहाँ पे जैसे ऑन चेक करना है, सेकंड वाले में चेक करना है कि वो पर्टिकुलर बिट जो है, nth बिट जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ nth बिट ऑन है, यहाँ पे ऑफ है। फिर उसके बाद एक होता है टॉगल कि ऑन है तो ऑफ कर दो, ऑफ है तो ऑन कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद एक और टर्म आता है हमारा इसमें चेक करना, चेक करना कि ऑन है या ऑफ। अब फिर देखिए यहाँ पे है क्या करना, ऑन करना है nth बिट को, यहाँ पे nth बिट को ऑफ करना है, यहाँ पे nth बिट को टॉगल करना है, और यहाँ पे हमें चेक करना है कि वेयर इन बिट इज ऑन और ऑफ।
ठीक है, हमें ये चेक करना। तो अब इन सभी में ना हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। समटाइम्स हम अलग अलग मास्किंग यूज करते हैं कि मास्क के थ्रू पता चलेगा। मास्क से आपको, अभी हम लोग मास्क भी डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट अ मास्क बिट, ठीक है, उससे भी पता चलेगा। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो हमारे पास जो ऑन है, इसमें हम लोग यूज करेंगे ऑन है या नहीं, इसको चेक करना है ना, या ऑन करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे और। यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे दिस वन इज कॉल्ड जॉर, ओके। और यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप एंड भी यूज कर सकते हो और भी यूज करते हो, दैट दैट डिपेंड्स ऑन। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमें चेक करना हो कि वेदर कोई नंबर का जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो ऑन है या ऑफ है, मैं इसको इसको मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे सपोज करो हमारे पास एक नंबर है, नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1011 010, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि ये वाला जो बिट है ये ऑन है या ऑफ। तो हमें पता करना है ना कि थर्ड बिट हमें चेक करना है कि थर्ड बिट ऑन है या ऑफ। तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो सपोज करिए कि हमें अगर थर्ड बिट को चेक करना है कि ऑन है या ऑफ है, तो हमें यहाँ पे, अगर मैं इसको जीरो के साथ, यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो लिख दूं और बाकी जगह सिर्फ मैं वन लिख दूं, क्यों? क्योंकि आपको बाकी नंबर में कोई चेंजेस नहीं करना है, वो एज इट इज वैसे ही रहना है। सिर्फ ये पता करना है कि ये वाला जो बिट है वो ऑन है या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको और कर दूं, इसकी मैं ऑरिंग कर दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो देख सकते हो कि और वाले में तो ऊपर वाले पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि नीचे तो हमने सिर्फ वन ही लिख रखा है सिवाय इसके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ओके, ये वन आ जाएगा, वन, ये वन, ये वन, यही तो आ जाएगा। उल्टा कर दिया। हमें ये चेक करना है कि ये ऑन है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए वन, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूं मैं सब में जीरो। तो अब इस वाले में ऊपर वाले पे ही डिपेंड करेगा कि वो क्या आएगा आंसर। जैसे ये जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन है तो वन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा, ये अगर ऊपर वाली वैल्यू जीरो है तो ये वन आएगा, और ऊपर वाली वैल्यू अगर वन है तो भी ये वन आएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए आप वन, वन, जीरो, वन, तो पूरी वैल्यू वही रही सिवाय इसके, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा। अब नाउ क्वेश्चन ये है कि हम ये बनाएंगे कैसे, ये मास्किंग कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम x में कोई वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है। जैसे x में हमने वैल्यू स्टोर कर लिया है वन, तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? जीरो, 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 वन, ठीक है। और इसको थ्री बिट, हमें थर्ड बिट चेक करना था, तो थ्री बिट हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। अगर थ्री बिट लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वन यहीं पे आ जाएगा। टू बिट शिफ्ट करेंगे, सॉरी। तो अगर यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो इसको टू बिट शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट में, तो क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे आप आपका आ जाएगा, पीछे में दो जीरो ऐड हो जाएंगे, और तीन तीन छः सात, और ये आठ, इस हिसाब से ऐड हो गया। और इसको इसके साथ और कर दीजिए। सो इस केस में हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो nth बिट है वो हमारा ऑन है या नहीं, ठीक। सो इस हिसाब से हमारा ये वैल्यू चलेगा। तो जब भी हमें ऑन चेक करना हो तो हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे। सेम इसी तरह से हमारा ऑफ वाला आएगा। तो यहाँ पे मास्किंग का क्या फंडा है कि आप पर्टिकुलर वैल्यू पे वन को पास करना हो, आगे पीछे करना हो, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे शिफ्टिंग, ओके। ये शिफ्ट से पता चलता है कि आपको उस पर्टिकुलर वन को, जैसे अगर मैं सिर्फ वन लिखूंगा तो वन लास्ट में ही आएगा, है ना। तो उसको जितने बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है उतने बिट आप उसको शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट में, वो लेफ्ट में चला जाएगा, ओके। द सेकंड है हमारे कि हमें चेक करना है कि वो ऑफ है, मतलब उसको ऑफ सेट करना है, ठीक है। तो अगर ऑफ सेट करना है तो फिर से मैं एक नंबर ले लेता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। मान के चलिए हमारे पास एक नंबर है
0 1 0 0 1 0 0 3 3 6 7 8 ये, ठीक है। और हमें इस वाले बिट को ना ऑफ करना है, इस वाले बिट को ऑफ करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन है, अगर ऑफ है तो ऑफ ही रहेगा, ठीक है। और एक और मैं ले लेता हूँ 0 0 1 0 0, यहाँ पे भी ले लिया हमने 1 0 0, और इस वाले बिट को ऑफ करना है, ठीक है। तो दो हैं केस हमारे पास। अगर मेरे को इस वाले बिट को ऑफ करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, एंडिंग यूज करूंगा और मास्किंग यूज करूंगा। मैं मास्क कैसे बनाऊंगा इसके लिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 1 1 1 1 0, ठीक है 1 1। और इसको अगर मैं एंड करता हूं तो देखिए जो ऊपर वाली वैल्यू है सेम वही वैल्यू आएगी आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 0 0, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि एंड कर रहे हैं ना। तो 0 1 0, फिर ये क्या हो जाएगा 0 0 1 0 0। तो ये वाली जो बिट थी, ये बिट हमारी हो गई ऑफ। ओके, तो क्या किया हमने, सिर्फ 1 यूज किया है इस वाले में। अगर मेरे को ये यूज करना होगा तो मैं क्या यूज करूंगा, अगर इस हिसाब से मेरे को मास्किंग बनानी होगी तो मैं क्या यूज करूंगा, लास्ट में 0 है उसको आगे सेंड करना है, ठीक है। तो इसको सेट करके मास्क कर लेंगे। अगर इस वाले में हमें करना है तो यहाँ पे भी सेम वही, इस वाले बिट का करना है तो हम यहाँ पे करेंगे 1 1 1 1 0 1 1 1। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है, लेकिन हमें तब भी ऑफ ही करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सॉरी 0 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है। तो चूंकि ये बिट ऑलरेडी ऑफ था तो ये ऑफ ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये बिट ऑन था तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप ऑफ सेट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर बिट पे। उसके लिए बस आपको एक मास्क बिट बनाना है मास्किंग के लिए, और देन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉगल। टॉगल का क्या मतलब होगा कि अगर वो 1 है तो उसको 0 कर दो, और अगर 0 है तो उसको 1 कर दो, ठीक है। तो इस वाले में भी हम लोग वही सेम बिट यूज करेंगे कि अगर हमारे पास नंबर है 1 0 0 1 0 0 1 0, ठीक है। हमें इस बिट को टॉगल करना है, मतलब अगर ये 1 है तो इसको 0 कर दो, और अगर 0 है तो 1 कर दो। तो अब इस केस के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका उल्टा करना है। ये 1 है तो ये 0 हो जाए, और 0 है तो 1 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कोई बता सकता है इसमें यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे कि हमारा ये टॉगल हो जाए, अगर ये 1 है तो 0 हो जाए, 0 है तो 1 हो जाए। दोनों केस के लिए हमें एक मास्क की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना। उस मास्क में हम क्या ऐसा रखें, लाइक अगर मैं यहाँ पे, और बाकी बाकी जो नंबर है वो वही रहे, मतलब किसी नंबर के आपको पर्टिकुलर बिट को टॉगल करना है, ठीक है। सारे बिट्स को टॉगल नहीं करना, सिर्फ पर्टिकुलर बिट को टॉगल करना है। तो अगर आपको टॉगल करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वहां पे वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपको क्या मास्किंग आप बनाओगे कि यहाँ पे ये उसको टॉगल कर दे, सोच के बताइए एनीवन। इसके लिए भी जब हमें मास्क बनाएंगे तो सेम हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, बाकी जगह 0 कर देंगे। जब आप इसकी जॉर करोगे तो जॉर का मतलब क्या होता है, जब दोनों डिसिमिलर है तो वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। उल्टा हो गया, ये 1 था तो अब ये 0 हो गया, बाकी जगह आप देखो तो आपको वही नंबर। सो इस केस में आपको ऐसा करना है। अगर मान लो यही नंबर हमारा 0 वाला होता, उसको 1 करना होता तो क्या होता। तो देखिए 0 1 0 0 1 0 0
ये है, और सपोज करो इस वाले को मेरे को 1 करना है, ठीक है, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे इस वाले बीट पे और बाकी सब में 0। इसकी जोरिंग करो, क्या आएगा 1 0 0 1, ये कितना हो गया 1 हो गया, 0 1 0, सारे सेम वही रहे, सिर्फ ये वाला जो आपका नंबर है, ये वाला जो डिजिट है वो आपका टॉगल होगा। ओके, सो टॉगलिंग के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। चेक करना हो तो चेक के लिए आप एंड या और कोई भी यूज कर सकते हो पर्टिकुलर बिट को कि वो ट्रू है या नहीं। ओके, तो इस हिसाब से हमारे सारे वर्क्स जो है वो परफॉर्म होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस एक प्रोग्राम्स बनाने जा रहा हूँ। प्रोग्राम्स आप लोग बहुत मतलब स्टार्टिंग से करते आ रहे होगे, आई होप अगर आपने ये ज्वाइन किया है तो प्रोग्रामिंग में आप लोगों का इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पे स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स में यूज करने वाला हूँ बिट वाइज के थ्रू। ठीक है, बिट वाइज के थ्रू मतलब विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। ओके, अगर मेरे को स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स करना हो बिट वाइज के थ्रू तो मैं वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक हम इसके पहले क्या यूज करते थे, या तो 3 वेरिएबल्स यूज कर लेते थे, 3 वेरिएबल्स के थ्रू करते थे, 2 वेरिएबल्स के थ्रू भी हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन 2 वेरिएबल्स में आप करते हो तो आप जनरली प्लस माइनस यूज करोगे या मल्टीप्लाई डिवाइड यूज करोगे। ओके, ये 2 ऑपरेटर्स के साथ कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिट वाइज चाहोगे तो बिट वाइज में सिर्फ एक ही ऑपरेटर यूज होगा और उसी ऑपरेटर के थ्रू आप स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इस चीज को हमें करना है तो मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कोडिंग। ओके, और अगर किसी का कोई डाउट इसमें होगा तो यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेरी। मैंने C++ इस पे DFC में यूज कर रहा हूँ, तो इसी वाले पे मैं प्रोग्राम बनाऊंगा अभी। कोडिंग मैं C में करूंगा। तो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, इन्हीं दोनों को हमें स्वैप करना है। स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देते हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ A इक्वल्स टू A XOR। ठीक है, फिर लिखता हूँ B इक्वल्स टू A XOR, और फिर लिखता हूँ A इक्वल्स टू A XOR। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। फिर उसके बाद देखेंगे कि बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है, या पहले ये भी चेक कर लेते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। इसको रन कराते हैं। यहाँ पे 2 मैंने नंबर दिया, मान लीजिए 10 और 20 में देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि वैल्यू में इनिशियली ए में 10 था, बी में 20 है, और जब मैंने बीट वाइज और यूज किया तो ए में 20 हो गया, बी में 10। ठीक है, तो ये हर नंबर के लिए होगा। अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे 5 और 10 यूज करता हूँ, 5 स्पेस 10 यूज किया, तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होगे कि स्वैपिंग हो गया। ओके, बट हाउ ये स्वैपिंग हुआ कैसे, है ना, इसको भी समझना ज्यादा जरूरी। ओके, तो इसको समझने के लिए मैं इसी में ना थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कोड का, जिससे हम ये क्लियर कर पाएंगे कि काम कैसे काम हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है वो 2 वेरिएबल है, हमारे पास ए है और बी है। मैंने वैल्यू ले ली ए में 5 और बी में मान लीजिए 10 ले ली। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन में हमने क्या किया है, ए और बी किया है। ओके, तो ए की वैल्यू हम देखेंगे,
तो मैं ए 4 बिट में आ जाएगा, है ना, और 10 भी जो है वो 4 बिट में आ सकता है। तो मैं यहाँ पे बस वही यूज कर रहा हूँ, 4 बिट के थ्रू मैं करके देख लेता हूँ। तो 5 का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, 4+1 होता है ना। तो 101, अब 0101 ये इक्विवेलेंट हो गया हमारे 5 के, 124 होता है। और फिर उसके बाद अगर मैं 10 की बात करूँ तो 10 हो जाएगा हमारा 1010, ये हो गया हमारा 10। अब दोनों को अगर मैंने जोर किया तो जोर का आंसर कितना आएगा, आप खुद देख सकते हो कि डिसिमिलर वाले में ट्रू होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये भी दो डिसिमिलर है, ये भी डिसिमिलर है, ये भी डिसिमिलर है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 15 आ गया। दैट मीन्स कि आप सिंपल देख सकते हो कि दोनों का एडिशन हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो फाइनल ए है वो यही बचा, है ना, फाइनल ए। क्योंकि हमने, अगर मैं इस लाइन को देखूं तो हमने क्या किया है, ए इक्वल्स टू ए और बी यूज किया, तो ए में हमारा फाइनल ही है, याद है। अब उसके बाद बी में मैं फिर से इस वाले नए ए में मैं बी को जोर कर रहा हूँ, तो बी की वैल्यू, ये हमारा ए है, ये बी है। इसको जोर किया तो ये क्या गया, 1010, इसको मैंने जोर कर दिया। तो जोर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये जो भी वैल्यू है ये वापस किस में स्टोर हो गया, बी में। तो आप खुद देख पा रहे होगे कि बी में यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 0101, जो कि पहले वैल्यू थी किसकी, ए की। ठीक है, मतलब अगर दोनों को ऐड करके मैंने फिर से उसमें जोर कर दिया, ओके, तो क्या हो गया कि जो पुरानी वाली वैल्यू थी उसने उसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पे आपका जो ए में है, इस लाइन पे जो बी में है वो बी में आ गया 010, दैट इज इक्विवेलेंट टू 5। ए अभी भी हमारा वही है, ए में अभी भी हमारा वही है। इसमें फिर से मैंने बी को जोड़ किया, तो बी हमारा ये हो गया ना, लेटेस्ट बी में ये स्टोर हो गया, तो इसको 0101 से सॉल्व किया, तो ये फिर से माइनस करके पुरानी वैल्यू ले आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0101। तो ये कितने के इक्विवेलेंट है, दैट इज द 10। ओके, तो 10 की वैल्यू को वो यहाँ पे वापस करके ले आएगा, सो ये हो गया 1010। ओके, तो यहाँ पे आप खुद देख पा रहे होगे कि कितना आसान हो गया। हम अगर हम लोग जोर यूज कर रहे हैं तो जोर के थ्रू स्वैपिंग ऑफ टू नंबर बिकम्स वेरी वेरी इजी, वी डू नॉट हैव टू यूज एनी वेरिएबल्स, ओके, एनी एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स। अगर हम इसको सीख की बात करें, है ना, मतलब अगर मैं दूसरे एक स्टेटमेंट्स की बात करूं तो उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे दूसरा तरीका क्या होता था इसका, कि दो वेरिएबल ही हमें यूज करने हैं, है ना, और दूसरा तरीका हमें अगर यूज करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते थे ऐसे, ए इक्वल्स टू ए प्लस, ये लिखते थे। फिर लिखते थे बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, फिर लिखते थे ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये लिखते थे हम लोग। ये दूसरा तरीका था। एक और तीसरा तरीका है, अगर दोनों में से कोई नॉन जीरो नंबर हो तो, है ना, दोनों नॉन जीरो नंबर होंगे तभी तीसरा तरीका काम करता है। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, तो ए इक्वल्स टू लिखते हैं ए इंटू बी, फिर उसके बाद लिखते हैं ए इक्वल्स टू ए बाई बी, और फिर यूज करते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए बाई बी, और फिर यहाँ पे ए इक्वल्स टू ए बाई। ओके, सो दीज ऑल आर वर्किंग वेरी वेरी इफिशियंटली, बट इन सभी में ना आपको दो ऑपरेटर्स यूज करने पड़ रहे हैं। बट इफ वी सी द फर्स्ट डेटा, द फर्स्ट कोड, सो इसमें हमने सिर्फ एक ही ऑपरेटर यूज किया। ठीक है, सो दिस कैन ऑल्सो बी यूजफुल समटाइम्स, अगर आपको नंबर को स्वैप करना हो या दूसरे नंबर को पहले नंबर में डालना हो तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर ये करना चाहता कि ए में बी की वैल्यू आ जाए, ओके, ओके, सो वी कैन ऑल्सो यूज द बिटवाइज स्वैप ऑपरेटर, ओके, और यहाँ पे
Some participants have raised their hands. Do they have any query? Okay. ओके, सो अगर आप इसको प्रैक्टिस भी करके देखोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर वहां पे कुछ गड़बड़ आ रही है ना, तो आप लोग वो साथ साथ कर पाओगे। एंड आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल एंड द ऑडियो इज लाउड एंड क्लियर, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो रही होगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इसको मैं थोड़ा सा फाइल कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कोई एक नंबर दिया हुआ है आपको, है ना, उस पे देखते हैं, क्योंकि ये भी समटाइम्स क्वेश्चंस आता है जिसमें हमें बहुत ही कम टाइम में पता करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं ये जो टॉपिक अभी डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड फिर दो प्रॉब्लम्स आएंगे, इन दोनों में आपको ये हेल्पफुल करेगा। तो सपोज करिए कि हमारे पास कोई नंबर है लाइक 10, चेंज कर लो, जैसे हमारे पास कोई नंबर है ना, बहुत बड़ा नंबर है ये मान लीजिए, ठीक। अब इसमें एक वर्ड आता है हमारा राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सिग्निफिकेंट नहीं, इसको कहते हैं हम लोग राइट मोस्ट साइन बिट। ओके, तो ये होता है हमारा RS, राइट मोस्ट साइन सेट बिट, ठीक है। इसको हम कहते हैं राइट मोस्ट साइन बिट। मतलब ऐसा नंबर, मतलब इस वाले में ऐसा नंबर जिसके आगे, ऐसा वन जिसके आगे सिर्फ जीरो, ठीक है। या फिर दूसरे दूसरे लैंग्वेज में अगर हम कहें तो राइट मोस्ट, इधर लेफ्ट होगा, इस तरफ अपना राइट होगा, ठीक है। तो राइट मोस्ट का मतलब क्या हो गया, हमें इस वन को पता करना है, ठीक है, ये वन निकालना है कि वो कौन से पोजीशन पे है, ठीक। या अगर सपोज करिए हमारे पास ऐसा कुछ नंबर आता कि 0 1 0 0 0 0 0, सिर्फ यही होता, तो राइट मोस्ट सेट बिट हमारा ये कहलाता, दिस इज कॉल्ड RMS। ओके, अगर हमारे पास सिर्फ जीरो है तो इसमें राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ही नहीं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपके पास कोई एक नंबर दिया हुआ हो और आपको पता करना हो कि राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहाँ पे है या कौन से पोजीशंस पे है, आपको वो पता करना है। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा, राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकालना, ठीक है। तो अब अगर राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बात करें तो हमें राइट से चलना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और जैसे ही पहला वन मिला, जो कि हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट में भी करते हैं, जैसे टूज कॉम्प्लीमेंट होता है तो कैसे निकालते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये है कोई नंबर, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा, राइट मोस्ट सेट बिट के आगे लेफ्ट की तरफ जितने भी बिट्स हैं उन सभी को हम लोगों को टॉगल करना पड़ता है, या कहो कि कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और इसके आगे जितने भी हैं इन सभी को आपको उल्टा करना पड़ेगा, तो 1 1 0 1 1 0, दिस वन इज द टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ये पता करना है कि इसका पोजीशन कहाँ पे है, राइट मोस्ट सेट बिट का पोजीशन कहाँ पे है, ये हमें पता करना है, ठीक है। सो कैसे कर सकते हैं इसको पता, तो इस चीज के लिए हमें कुछ मास्किंग बनानी पड़ती है, कोई वैल्यू निकालना पड़ता है ना। क्योंकि अगर सपोज मान लो कि इसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया कि आपके पास एक नंबर है
आपको पता करना है कि उस नंबर में कितने वन है, लाइक उस नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने वन है, ये पता करना है, तो वहां पे 20 की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अब जैसे सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली, मान लो 10 ले लिया, ठीक है, 10 ले लिया। 10 का होता है 1010, और इसको 8 बिट में अगर लिखेंगे तो ऐसा है, ठीक है। दिस वन इज द 10, ठीक। और इसका अगर राइट सिग्निफिकेंट देखें तो हमारा ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया बताइए, कोई लॉजिक क्या होगा, क्योंकि आपको सेट तो करना नहीं है ना, आपको पोजीशन पता करना है कि राइट मोस्ट सेट बिट कौन सा है। किन्हीं के पास कोई आइडिया है कैसे निकालेंगे? तो इसका एक सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आपके पास एक्स है, ठीक है, तो राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट निकालने का मतलब है एक्स इक्वल टू एक्स, और इसको एंड करना होता है हमें इसके टूज कॉम्प्लीमेंट्स के साथ। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स है और इसका मैं टूज कॉम्प्लीमेंट अगर निकालता हूँ, ठीक है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका, 0 और 1, तो यही रहेगा, फिर सारा उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये 1 1 1 1, ये रहेगा। और इसको फिर एंड कर देंगे, अगर एंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये 0 0 0 0 0 निकल गया राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट। ओके, तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस। तो मैंने आपको लोगों को सिंपल सा बताया था कि अगर किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो एक तरीका तो है कि उसको वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप उसी नंबर को ना माइनस में साइन चेंज कर दो। जैसे ही आप उसको माइनस में कन्वर्ट करोगे वो आपका बन जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चंस को हमें चेक करना हो, ट्राई करना हो, तो कैसे करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। एक नंबर लेंगे यूजर से और फिर देखेंगे कि उसका सिग्निफिकेंट बिट क्या निकलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो सेम वही मैं पहले वाले से ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये नंबर तो उतना ही लेना पड़ेगा, एक नंबर लेना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक नंबर ले लिया ए, और सिग्निफिकेंट बिट निकालने के लिए मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ बी इक्वल्स टू ए एंड माइनस, ठीक है। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, परसेंट बी कॉमा राइट मोस्ट सेट। सपोज करो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट बिट हमारा आया 2। कैसे समझ लेंगे, हमने 10 दिया था, एग्जांपल अभी जस्ट मैंने बताया भी था, बट फिर से देख लेते हैं। हमारे पास 10 था, दैट मीन्स की 1010 था, ठीक है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट्स अगर हम निकालेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो जाएगा, सो 0 1 0 0 1 1 0, ये आएगा, ठीक है। इसका उल्टा, अब इसको एंड कर दिया, एंड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 ये 1 ये 0 0, ये आया। इसके ये कितने के इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है 2 के, तो आंसर हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। सो दिस वन इज योर राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन बिट, सॉरी सेट बिट, राइट मोस्ट सेट बिट की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं अभी एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो जनरली मैंने अभी आपको कहा भी था, ओके।
So now the question is that कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, you have to find out number of ones in that particular digit. ठीक है, जैसे सपोज करिए कि आपके पास x इक्वल टू है 25, तो 25 की अगर मैं बाइनरी देखूं तो क्या आएगा 1 2 4 8 16, ठीक है, तो 16 और 8 24, 24 और 1 25 ये आएगा, ठीक। और इसको 3 2 5 5 डिजिट में है, तो इसको 6 7 8 8 डिजिट में बना दिया। Now the question is that you have to find out number of one, okay, number of one into this number, okay, इस x नंबर के बाइनरी में कितने साइन बिट जो है या कितने जो बिट है वो 1, ये आपको काउंट करना है, ओके। सो यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ वंस इन, ओके। सो हाउ विल यू डू दैट, बताइए। एक लॉजिक तो यही होगा कि आप इसको ब्रूट फोर्स के थ्रू काउंट करना शुरू करो, उसको कन्वर्ट करो, पहले एक्स को डिवाइड करते रहो और देखते रहो कि कितने में रिमाइंडर 1 आ रहे हैं, क्योंकि जो रिमाइंडर आता है वही हम लोग काउंट करते हैं। कोई और भी तरीका हो सकता है क्या, क्योंकि वो तो काफी बड़ा होगा, है ना। कोई और भी तरीका, दूसरा तरीका हो सकता है कि इस तरफ से देखते चले जाओ, एरे में स्टोर कर लीजिए। दूसरा तरीका हो सकता है कि लेफ्ट टू राइट चले जाएगी, ओके। बट कुछ इफिशिएंट वे भी हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी बेस्ड ऑन बिटवाइज, ओके। बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें काउंट किसको करना है, हमें 1 को काउंट करना है ना। सो आप लोग थोड़ा सा देखो, इस पे दिमाग लगाइए। और अगर सर किसी के पास 1 के साथ जी हाँ। एंड कर दे, 1 के साथ एंड करते रहेंगे और काउंट करेंगे, अगर नहीं है तो शिफ्ट करते रहेंगे। 1 के साथ एंड करोगे, ओके, बहुत देखते हैं। और अगर वो 1 आता है तो फिर काउंट करते रहेंगे। तो इसको अगर मैंने 1 के Yes, sir. साथ एंड कर दिया, 0 0 0 0 0 0 0 1, इसके साथ कर दिया है, तो ये कितना है, ये 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, शिफ्ट कर देंगे उसको। किसको, इस 1 को, नहीं सर, नंबर को नंबर को, लूप लगा देंगे ना, ओके, तो ठीक शिफ्ट है। करते रहेंगे। लूप, तो जहां जहां 1 होगा वो ट्रू देते रहेगा। तो मतलब इसके बाद आप इसको राइट शिफ्ट करोगे, तो राइट शिफ्ट करोगे तो नंबर बन जाएगा आपका 0 0 1 1 0 0 0, ये बनेगा। यस सर। एक बिट घट गया इसमें, या एक बिट इसमें मान लो इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको 1 के साथ करोगे, तो यहाँ पे आएगा 1 0 0 0 0 0 0 0, ये आया। तो इस बार आ गया 0, तो इसको काउंट नहीं करोगे, है ना। यस सर। ओके, तो कितना टाइम लगेगा, n, n लगेगा पूरा। So और 32 साथ ही times. साथ आपको ये कितना, तो 32 टाइम्स लूप चलेगा ना सर, 32 बिट का नंबर होगा तो 0 से 31 तक, तो 32 टाइम्स मतलब ऑर्डर ऑफ n। n ही हम उसको लेके चले, क्योंकि हमें ये भी पता करना पड़ेगा ना कि जो आपका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर निगेटिव नंबर आएगा तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा आपको कि 1 कहाँ पे, ठीक है। कोई और तरीका इससे भी आसान, तो ये तो ब्रूट फोर्स के जैसा ही हो गया ना। इससे बेटर तो ये नहीं होगा कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते चले जाओ उस नंबर को, और जितने रिमाइंडर 1 है उसको काउंट करते चले जाओ। आप ये सोचो कि इसमें अभी जो मैंने लॉजिक जो डिस्कस किया, क्या वो यूज हो सकता है, राइट मोस्ट सेट बिट यूज हो सकता है।
देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है वो नंबर यही नंबर लेके चल रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, तो अगर मैं इसका RMS भी निकालूं तो ये मिलेगा ना हमें, यही तो मिलेगा। ठीक है, और जब ये मेरे को मिला फिर मैंने इसी को इसमें माइनस कर दिया, तो जब इसी को इसमें माइनस कर दिया तो ये नंबर अब क्या हो गया, 0 0 0 1 1 0 0 0। ठीक है, तो ये 1 निकला एक हमारा। अगर RMSB की वैल्यू आ रही है दैट मीन्स कि उसके अंदर 1 होगा। ठीक है, अब इसको मैंने 0 कर दिया, अब फिर से इसका RMSB निकाला, जब फिर से RMSB निकाला तो हमारे को ये मिलेगा, इसका पोजीशन मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने इसको माइनस कर दिया इसी में। ठीक है, मतलब यहां तक की वैल्यू जो भी आई है उसको माइनस कर दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, फिर उसके बाद निकाला ये 1, फिर से माइनस किया तो अब ये हो गया सारे 0। जब ये सारे 0 हो गए तो RMSB आएगी 0। तो जब RMSB की कोई वैल्यू ही नहीं आई तो दैट मीन्स कि हमने सारा ट्रेवर्स कर लिया, तो जितने 1 आए उतने आपका वैल्यू होगा 1। समझ पा रहे हो? किसी भी नंबर में उसकी RMSB जो आई है वो अगर माइनस कर देंगे तो वो 1 को वो 0 बना देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट RMSB निकालेंगे, तो ये जितने बार आप RMSB निकालते जाओगे अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि उतने नंबर ऑफ 1 अवेलेबल है उस बाइनरी डिजिट्स के कलेक्शंस। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ। कौन बोल रहा था अभी, केशव था, कौन थे? सर इसमें भी तो कार्तिक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी। सर ऑर्डर ऑफ कैसे? एन कैसे होगी सर, पहले वाले सोल्यूशन में भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन जाएगी ना सर, क्योंकि हम नंबर का तो सर बीट में रिप्रेजेंट करेंगे ना उस नंबर को, तो एन कैसे चल जाएगी फिर, लॉग एन जाएगी सर पहले वाले में हम भी। और एन हम एन यहाँ पे मान रहे नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल इन दैट नंबर। ठीक है, अच्छा मतलब अगर आप लॉन्ग यूज करोगे तो 64 बिट होगा, तो हम उससे कंपेयर कर रहे हैं नंबर ऑफ बिट्स में। अच्छा सर, फिर तो अच्छा, हाँ सर। इस वाले में बताओ कि एन कैसे जाएगा। आप राइट मोस्ट सेट बिट अगर आप निकालोगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो कांस्टेंट टाइम में आ रहा है ना बेटा, यस x सर। इक्वल्स टू x एंड माइनस x। तो साइन बिट आप जैसे ही आप निकालोगे RMSB तो कांस्टेंट में आ रहा है, आपको बारी बारी से नहीं जाना पड़ रहा है ना। लाइक आप ये देखो कि आप पहली बार में तो यहाँ पे थे, इस 1 पे थे, और दूसरी बार में डायरेक्ट इस 1 पे आ गए, फिर तीसरी बार में इस 1 पे आ गए, फिर चौथी बार में बाहर निकल गए। तो जितने नंबर ऑफ 1 होंगे उतने बार ही तो वो लूप चलेगा। सर तो लेकिन अगर वर्स्ट सब केस में में, 1 है, सारा वर्स्ट 1 है। केस में, हाँ, यस सर, तो अगर सर वर्स्ट केस, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ कि वर्स्ट केस की बात अगर हम छोड़े तो फिर हमारा नंबर ऑफ जो फाइंड आउट करने का जो टाइम है वो घटेगा, तो ये स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा, है ना, वर्स्ट केस को छोड़ के। अगर वर्स्ट केस में हम देखेंगे तो फिर तो हमें इसकी जरूरत ही क्या है। अगर वर्स्ट केस में हमें सभी नंबर को काउंट करना है तो क्या करेंगे, वन से उसको मास्क कर दो, और अगर सभी 1 ही आ गए, मतलब 1 से मास्क करने के बाद सेम अगर वही नंबर आ गया दैट मीन्स की नंबर ऑफ 1 उतना ही है। ऐसे सपोज करो ये है 1 और इसको हमने 1 से ही एंड किया, ठीक है, और ये 1 ही आ गया, मतलब सेम उतना ही नंबर आ गया, जितना ये था उतना ही नंबर आ गया, दैट मीन्स कि ये सारे 1 थे। तो फिर हमें इतना जानने की जरूरत क्या है, हम तो पहले ही कंडीशन लगा के फाइंड कर लेंगे। बात आई समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, याद है, वो जोसेफस प्रॉब्लम, याद है?
किसी को क्या था वो, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। रुको, उसके पहले एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सेलेक्ट किया है, ये तो बताइए। तो ये नंबर ऑफ बिट करने वाला, नंबर ऑफ बिट फाइंड आउट करने का ना, इसका एक स्पेशल नाम है कर्निघन एल्गोरिथम, जो कि मैंने अभी आप लोगों को कराया, कर्निघन एल्गो, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड जोसेफस प्रॉब्लम, JOSEPH, जोसेफस प्रॉब्लम। इसमें क्या है समझो, इसमें क्या है कि एक सर्कल में कुछ बंदे हैं, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये सैनिकों की टुकड़ी है। ठीक है, और इस वाले में स्टार्टिंग 1 से करेंगे और एक को छोड़ के दूसरे को गोली मारा जाएगा। आगे बोलो सर, आपके आगे सुनाई नहीं दिया। तो इस वाले में क्या है, क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट में एक को छोड़ के दूसरे को गोली मारा जाता है। तो अगर 1 है तो 1 को छोड़ देंगे, 2 को गोली मारेंगे, फिर एक को छोड़ के 4 को गोली मारेंगे, फिर 4 को छोड़ के 6 को गोली मारेंगे। ठीक है, 6 को गोली मारने के बाद फिर एक को छोड़ेंगे, फिर गोली मारेंगे। तो अब अगला नंबर किसका आएगा, 3 का। फिर 3 के बाद एक को छोड़ेंगे, 5, 5 के बाद किसको गोली मारेंगे, 1 को। तो जो लास्ट बचा, दिस वन इज विनर। ये है क्वेश्चन कि मतलब आपके पास n सोल्जर्स कहो या n प्लेयर्स कहो, एक सर्कल में है और वो अल्टरनेटिवली करके एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, मतलब अल्टरनेटिवली करके हम लोग उसको गेम से बाहर निकाल रहे हैं। तो जो सबसे लास्ट में बचेगा वही रहेगा विनर। ठीक है, हमें पता करना है कि वो विनर कौन होगा हर वैल्यू के लिए, जब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती। तो ये तो मैंने 6 के लिए लेके दिखाया, ऐसे ही हम लोग n की वैल्यू कुछ और भी अगर लेके चलेंगे तो उस वाले के लिए भी हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो विनर कौन सा है। ठीक है, तो अगर आप इसको नॉर्मली देखोगे तो आप निकाल सकते हो इसको लूप के थ्रू, कि लूप अल्टरनेटिव चलाते जाए, एरे से रिमूव करते जाए, शिफ्टिंग करते जाए, इस तरह की चीजें आप लोग इसमें यूज कर सकते हो। और ये मैंने आप लोगों को ना लिंक लिस्ट वाले में कराया था कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है और उसमें से इस तरह से हम नोड्स को डिलीट करते जाएं, एक को छोड़ के डिलीट करते जाएं, तो जो सबसे लास्ट में नोड बचेगा दैट, उसे हमें पता करना है कि वो नोड कौन सा है। ठीक है, तो जोसेफस प्रॉब्लम का यही मेन है कंसेप्ट कि इसको अगर हम देखें तो कोडिंग करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप एरे यूज करके कर लो, दूसरा हो गया सेट यूज करके कर लो, है ना, क्योंकि सारे यूनिक ही एलिमेंट्स हैं। तीसरा हो गया लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज कर लो। लेकिन एक तरीका इसका आता है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बिट वाइज के थ्रू। ठीक है, और वही हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसका बताता हूँ कि एक और लॉजिक बताता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि वो सॉल्यूशंस काम कैसे करें। ओके, तो इसके लिए मैं कुछ एक एग्जांपल्स ले लेता हूँ। मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया था इस पे आप लोगों को समझाने के लिए। तो मान के चलिए कि आपके पास ना कुछ वैल्यू है n की, और उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ड्राई रन करके देखेंगे कि वो कैसे आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू ले रहा हूँ। तो वैल्यू मैं पहले ले लेता हूँ आपका n, नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, दूसरा ले लेता हूँ कि इसमें आंसर क्या आएगा। तीसरा ले लेता हूँ कि बचेगा कौन। ठीक है, लाइक एक वैल्यू ले ली 2x प्लस l, और ये ले लेते हैं आंसर। आंसर इज कॉल्ड 2l प्लस। ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले समझ लो। देखिए, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, ओके, तो एक ही खिलाड़ी है तो वो लास्ट जो बचता है वही जीतता है। तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 1 ही होगा। ठीक है, और इसको अगर हम 2x प्लस l में देखें तो कितना आ सकता है, 2:0 प्लस 1, यही आएगा। ओके,
सो 2:0 + 1 कितना आएगा हमारा 1 आएगा। ओके अगर इसको हम पुट करेंगे इसमें x + 1 सो ये कितना हो जाएगा 2 × 0 + 1 दैट इज 1। तो ये हमारा आंसर सही है। अगर एक बंदा होगा तो आंसर एक आ रहा है। ठीक है हमें क्या करना है हमें 2x + l के फॉर्म में एक फाइंड आउट करना है और उसका जो आंसर होगा वो होगा 2 × x + 1। मैं गलत कर रहा हूँ। सर 2 raised to power 0 + 1 तो सर 2 होगा ना सर। ये मैंने यही पे गड़बड़ कर दी। ये सही था लिखा हुआ 2:l + 1 ही होगा। ये है 1 इसका आंसर 1 आएगा। कैसे आता है वो बताओ। वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा क्या 2:0 + 0 l की वैल्यू कितनी होगी 0 तो 2 × l 0 0 + 1 1 तो इसका आंसर आया। ठीक है अगर n की वैल्यू 2 है सोचो अगर हमारे पास 1 और 2 है तो एक छोड़ के मार दोगे इसको 2 को मार दोगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका आंसर आया क्या 1। इस पे रख के देखो तो 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 1 + 0। हमें 2x के प्लस l के फॉर्म में ब्रेक करना है इसको। तो 2 1 करेंगे तो 2 होगा 2 + 1 2 होगा। ठीक है यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आई है 0 तो 2 × l 0 0 + 1 1 तो मतलब आंसर आ गया हमारा इसका भी सही। अगर मैं 3 रखूं तो मतलब हमारे पास क्या होगा डेटा हमारे पास होगा हमारे पास है 1 2 3। ठीक है तो अब इसको कैसे देखोगे तो एक रहा 1 2 को मार दिया फिर 3 छोड़ा फिर 1 को मार दिया तो आंसर क्या आना चाहिए 3। देखते हैं इसका आंसर आया 3। यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे ब्रेक करेंगे 2⁴1 + 1 यही होगा ना 2⁴1 2 + 1 1 ये हो गया n बराबर। ठीक है तो अब यहाँ पे l की वैल्यू है 1 तो 2 × l 2 2 + 1 3 आंसर सही है हमारा 3 आ गया। फिर अगर n की वैल्यू है 4 ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा आंसर देखिए ये हो गया 4। ठीक है सो 1 को छोड़ा 1 को छोड़ दिया 2 को मारा 3 को छोड़ा 4 को मार दिया फिर उसके बाद इधर आया 1 को छोड़ा 3 को मार दिया तो आंसर आ गया 1। तो इस वाले में आंसर आ रहा है हमारा 1। ठीक है कैसे होगा तो 2⁴2 + 0 सेम यहाँ पे 2 × 0 + 1 तो 1 ये भी आंसर सही है। अगर 5 होगी वैल्यू तो इसको भी देख सकते हो कि 1 को 2 को मारा 4 को मारा फिर 1 को मारा। ठीक है 1 के बाद 5 को मारा तो आंसर आया 3। ठीक है ये तो कितना आ जाएगा 2⁴2 + 1। ठीक है तो 1 × 2 2 2 + 1 3 तो ये भी सही आ गया। 6 के लिए देखो तो 6 के लिए आंसर कितना आना चाहिए ये हो गया 6। जब 6 के लिए देखोगे तो क्या होगा 1 को छोड़ के 2 को मारा फिर 4 को मारा फिर 6 को मारा फिर 3 को मारा फिर 5 को छोड़ के 1 को मारा तो आंसर आ गया कितना 5। ठीक है यहाँ पे क्या आ जाएगा 2⁴2 + 2 तो 2 × 2 4 4 + 1 5 तो आंसर आ गया 5। ठीक है मतलब ये जो फंडा है ये काम कर रहा है। ओके और बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहा है समझ देख पा रहे हो है ना। तो अगर इस फंडे के थ्रू अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा हमें यूजर से एक नंबर लेना पड़ेगा पहले तो n नंबर ले लिया यूजर से n ले लिया फिर उसके बाद हमें क्या करना है हमें 2⁴x + l के फॉर्म में निकालना है जो नियरेस्ट होगा। ठीक है तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे i की वैल्यू पुट कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई करते रहेंगे i को और तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे मतलब 2⁴x हमें निकालना है ना तो इसको देखेंगे कि ये लेस देन इक्वल टू n के होना चाहिए। जब ये इक्वल आ जाएगा तो फिर हमारा निकल जाएगा 2⁴x और इसको माइनस कर देंगे n से तो हमें निकल जाएगा क्या l। जैसे ही l निकला 2 × l + 1 रिटर्न कर दो दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है नाउ
द क्वेश्चन इज दैट कि इसको सॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैं पहले आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कि ये ऐसे हो रहा है। अब देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है, मतलब हाउ दिस इज पॉसिबल, कितना आसानी से हम लोगों ने इसको कर दिया है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बिट वाइज पे जाते हैं, बिट्स पे जाते हैं, बाइनरी पे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि हमारे पास n की वैल्यू जो है वो मान के चल रहा हूँ कि वो 6 ही है, क्योंकि 6 के लिए हमारा वैल्यू क्या आया था 5। 6 के लिए जो आंसर है वो हमारा आया था 5। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 1 से लेके ना 6 की मैंने नंबर लिख लिया बाइनरी में। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले आएगा 0, 6 तक है तो 3 डिजिट में ही हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ले लिया 0 0 0, फिर उसके बाद ले लिया 0 0 1, फिर उसके बाद ले लिया 0 1 0, फिर उसके बाद ले लिया 0 1 1, उसके बाद ले लिया 8 0 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो अगर हमारे पास बंदा है ऐसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मर रहा है, सबसे पहले मर रहा है बंदा 2 देन 4 देन 6। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये मर गया 1, फिर उसके बाद ये मर गया, फिर उसके बाद ये मर गया, है ना। मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर एक को छोड़ के हम लोग देखें तो कौन सा मर रहा है, तो जिसके लास्ट डिजिट में 1 है वो मर रहा है। देखो, जिसके लास्ट में 0 है वो नहीं मर रहा है, जिसके लास्ट में 1 है वो मर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम अगला देखें, अगला नंबर देखें कि अगला नंबर किसका होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इस वाले में देखो कि 0 है। ठीक है, इस वाले में 0 है। यहाँ पे ये जो लास्ट नंबर में ये जो नेक्स्ट डिजिट है ये क्या है 1 है। ओके, ये 1 है। तो ये नंबर हमें बताएगा, लास्ट वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये नंबर हमें बताएगा कि नेक्स्ट वाले में वो बंदा मरेगा जिसकी दूसरी डिजिट 0, मतलब इसके अपोजिट। ओके, तो अगर दूसरी डिजिट 0 है दैट मीन्स कि कौन सा मरेगा, ये मरेगा और ये मरेगा। फिर उसका थर्ड पे आ गया यहाँ पे अगर 1 है तो इसका कहना है कि अगला वही मरेगा। ठीक है, अगला नंबर वही मरेगा जिसकी थर्ड डिजिट 0। ठीक है, तो थर्ड डिजिट 0 किसकी है, इस वाले की, तो ये मर गई। ओके, तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो सबसे पहले मरेगा 0 वाला। ठीक है, मतलब कि ये भी तो मर ही जाएगा ना। फिर से करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जिसके लास्ट में 1 है वो मरेगा, तो ये मरेगा, ये मरेगा और ये। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने देखा कि जिसका सेकंड डिजिट है ये इसका लास्ट नंबर का सेकंड डिजिट क्या है 1 है, और अगर ये नहीं मरा है तो नेक्स्ट नंबर क्या मरेगा, वही जिसका सेकंड डिजिट 0। ठीक है, तो ये मरेगा, ये मरेगा और इस हिसाब से। ठीक, फिर उसके बाद अब फिर जब मैं इसको मारा फिर इसको छोड़ के वापस ये वाला मरेगा। ओके, यही तो मरेगा कि पहले हम किसको मारे थे 2 को देन 4 को, फिर उसके बाद इसको छोड़ के फिर कौन मरेगा, तो 1 मरेगा, 1 के बाद कौन मरेगा, तो 5 मरेगा। ओके, तो 5 मरने के बाद आंसर क्या आना चाहिए 3। गलत हो रहा है क्या, 6 लिया था ना। सर आपने सर 0 to 6 सर आपने 6 लिया है। 3 4 0 to 5 7 नंबर। 6, इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे ना, ये गड़बड़ होगी। मैं काउंट गड़बड़ आपके तो हो कहाँ पे है, इसको हटा दिया, 1 से लेके 6 तक n की वैल्यू ली थी 6। सो 1 को छोड़ के कौन मरेगा, जिसके लास्ट में 0 है, तो ये मरा और ये मर गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी देखे तो 2 4
6। अब इस वाले जो लास्ट वाला नंबर है ना, इसका सेकंड डिजिट हमें बताता है कि नेक्स्ट कौन सा मरेगा। तो यहां से पता करोगे इस वाले से कि अगर इसके सेकंड डिजिट में 1 है तो अगला वही मरेगा जिसका सेकंड डिजिट इसके अपोजिट है, मतलब 0। तो नेक्स्ट वाला क्या मरेगा, ये मरेगा 0। ठीक है, फिर सेकंड वाले में क्या होगा, यहाँ पे 1 मरेगा। फिर 3 को छोड़ के 1 को छोड़ के 3 मरेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 को छोड़ के 1 मरेगा। ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 तक हम पहुंच गए, लाइक हमने 2 को मारा, 4 को मारा, 6 को मारा। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या मरेगा, तो यहाँ पे वापस जाएंगे। 6 को मारने के बाद 1 को छोड़ के 3 को मारेंगे। वन को छोड़ के 3 को मारेंगे, मतलब यहाँ पे ये जो 1 है ये उसको मारेगा जिसके लास्ट में बने, वही गड़बड़ कर रहा है। तो इसको मारेगा, इसको छोड़ देगा। फिर उसके बाद देखा कि यहाँ पे क्या है, 1 है, तो अब ये उसको मारेगा जिसके नेक्स्ट डिजिट में 0 है, तो ये मार। तो इसके हिसाब से हमें फाइनली ये पता करना पड़ेगा कि जो हम मार रहे हैं उस वाले में वैल्यू आपका क्या क्या बचेगा और वो सीक्वेंस क्या है। तो इसी सीक्वेंस के हिसाब से हमें पता चलता है कि 2 इंटू L प्लस 1 जो है वो हमारा फाइनल। इस वाले को आप लीड कोड पे भी देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन है दिया हुआ लीड कोड पे, आप लोग ट्राई करके देखना इस वाले मेथड से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन ध्यान ये रखना कि लीड कोड में ना 2 तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि अल्टरनेट को मारना है, एक क्वेश्चन है कि के दिया हुआ है, मतलब के को छोड़ के मारना है और फिर काउंटिंग करनी है, फिर के को छोड़ के फिर मारना है, और वो एक राउंड टेबल में घूमे हुए। तो ये चेक करना है। ठीक है, तो जोसेफस प्रॉब्लम ना इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये हमें बिटवाइज का भी एक इंट्रोडक्शन देता है कि बिटवाइज के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस करें इसमें, टाइम है? टाइम तो है, अभी 5 मिनट हो जाएगा। एक जनरली लोग कहते हैं कि ये डीपी का प्रॉब्लम है, बट डीपी के बिना भी सॉल्व हो सकता है, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। सपोज करो कि कोई कंपनी है, कंपनी में ना 5 तरह के डेवलपर्स की जरूरत है, जो ABCDE है, इतने तरह के डेवलपर्स, इतने तरफ टेक्नोलॉजी है, इतने तरह की टेक्नोलॉजी है एक कंपनी के पास। और उसके पास ना कुछ जॉब इंटरव्यू के लिए कुछ डेवलपर्स आए, लाइक D1 आए, D2 आए, D3 आए, D4 आए, 4 तरह के उसके पास आए बंदे, जिसमें से D1 को आता है A और C टेक्नोलॉजी, D2 को मान के चलो क्या आता है B और D, D3 को मान के चलो आता है A B C और D, और D4 को आता है सिर्फ E। ठीक है, तो ना अब क्वेश्चन को है कि उसको कम से कम खर्च करना है, तो मतलब कम से कम डेवलपर्स हायर करने हैं, और डेवलपर्स वो इस हिसाब से हायर करे, कम से कम डेवलपर्स, कि ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी वाले बंदे उसके पास आ जाए। ये है क्वेश्चन। ठीक ठीक है, अब इसमें आप लॉजिक सोच के बताओ कैसे बनाओगे। क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी के पास ये 5 तरह की टेक्नोलॉजी है, मतलब ए टेक्नोलॉजी, B C D E, 5 तरह की टेक्नोलॉजी है। उसके पास 4 डेवलपर्स आए काम करने के, जिसमें से पहले डेवलपर्स को A और C टेक्नोलॉजी आती है, दूसरे को B और D टेक्नोलॉजी आती है, तीसरे को ABCD आती है, और चौथे को सिर्फ D4 आती है। तो उसको मिनिमम हायर करने हैं, डेवलपर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डेवलपर्स हायर करने हैं, और आपको बताना है कि वो कौन कौन सा डेवलपर होगा जिसको अगर वो लेता है, ठीक है, तो ये सारे टेक्नोलॉजी के डेवलपर्स उसके पास हो जाए। ये है क्वेश्चन। तो बताइए कैसे सॉल्व करोगे।